درس قرآن کا ذکر ہے تو میں ایک بات بتا دوں آپ لوگوں کو، یہاں جو مدرسہ قائم ہوا ہے اس میں بھی درس قرآن کا دخل ہے۔ ایک پروگرام میں آنا ہوا، مجھے یہ معلوم تھا، میری کچھ رشتہ داریاں ہیں اس علاقے میں، تو مجھے یہ معلوم تھا کہ اس گاؤں میں کوئی عالم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک پروگرام میں آنا ہوا، حجاج کرام حج سے واپس آئے تھے، اس موقع پر ایک پروگرام کرایا، اس میں مجھے بھی بلایا گیا، تو میں حاضر ہوا تو 2 عالم سے ملاقات ہوئی، بہت باذوق عالم۔ تو یہاں پر 21 کٹھا زمین کی بات ہوئی، لیکن کسی وجہ سے وہ زمین حاصل نہیں ہو سکی، تو یہ 2 کٹھا زمین حاصل ہوئی جس پر ابھی ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور یہی ہماری پہلی 2 کٹھا زمین ہے۔ اس کے بعد جو 2 کٹھا زمین حاصل ہوئی اس میں مسجد اور نماز خانہ، یہ دونوں کا پروگرام شروع سے لے کر چلا جا رہا تھا۔ تو مسجد تو ایک صاحب نے بنا دی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ نماز خانہ کے لیے بھی ایک صاحب تیار ہوئے تھے کہ انشاءاللہ وہ میری طرف سے، میری ماں کے نام سے وہ ہال بن جائے گا، لیکن بہرحال سب کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں، حالات نے شاید ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ نہیں بنا سکے، اسی کی وجہ سے اس میں تاخیر ہوتی رہی، اور آج الحمدللہ اس کام کے لیے ہم لوگ آگے قدم بڑھائے ہیں۔ بعض احباب کی محفل ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جی چاہتا ہے کہ کچھ چیزوں کو کھل کر کے بولا جائے۔ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں تھا، پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے حالات دیکھتے ہوئے، ایک ادارہ ہے اڑپی ڈسٹرکٹ میں جہاں سے ابھی حجاب کا مسئلہ پیدا ہوا تھا، اسی کے قریب میں ایک ادارہ ہے، وہاں بھیج دیا۔ شعبہ افتاء میں میری زیادہ گھنٹیاں تھیں، اس کے علاوہ حدیث کی بڑی کتابیں پڑھانے کو ملی ہوئی تھی، فیملی کوارٹر ملا ہوا تھا، بھرے پورے تھے الحمدللہ۔ لیکن ایک چیز کا جو قلق تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں میں اصلاحی کام نہیں کر سکتے تھے ہم، اس چیز کا قلق تھا، اس لیے کہ وہاں کی زبان ایسی ہے کہ اس زبان میں ہم لوگ ڈائریکٹ رابطہ کرنا بہت مشکل تھا۔ اسی دوران جب دربھنگہ شہر آنا ہوا تو ہم نے یہاں کے لوگوں سے، مجھے معلوم ہوا اس وقت کی بات ہے، یہ میں 2011-12 کی بات کہہ رہا ہوں، ہم نے ایک 2 عالم کے ساتھ بیٹھک کی کہ میں تو ایک جگہ پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ شہر میں کچھ کیجئے۔ ایک بیٹھک میری ہوئی 2012 میں، اس بیٹھک میں یہ عہد کیا گیا کہ انشاءاللہ کچھ کرنا ہے شہر میں، لیکن اتفاق سے اس پر کوئی عملی اقدام نہیں ہو سکا۔ میں بھی مدرسے سے آتا تھا، رمضان کے اخیر میں 20-25 رمضان کو، اور عید کے 10-12 دن بعد واپس ہونا رہتا تھا۔ 1 سال گزر گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر اگلے سال آیا میں، پھر بیٹھک کی، میں نے پھر بیٹھک کی، پھر یہ طے ہوا کہ کچھ کرنا ہے، اور حالات ایسے تھے کہ نہیں ہو پایا۔ اگلے سال میں نے سب سے پہلے قربانی یہ دی، چونکہ تراویح پڑھانے میں میرا وقت جاتا تھا 20-25 رمضان تک، میں نے کہا کہ اس بار میں تراویح نہیں پڑھاؤں گا اور دربھنگہ شہر میں کچھ کر کے رہوں گا۔ آ کر شہر میں بیٹھ گیا اور پورے شہر کا میں نے چکر لگایا۔ اپنے لوگ ہیں، ان کے درمیان کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں گاؤں سے آتا تھا، حجمہ چوراہا پر جو جیل کا کونا ہے وہاں پر ہمارا آٹو آتا ہے، وہاں تک تو آٹو سے آنا مجبوری تھی، وہاں سے پیدل امدادیہ، وہاں سے پیدل مولا گنج، وہاں سے پیدل نیم چوک، وہاں سے پیدل کرم گنج، پھر کرم گنج سے پیدل حجمہ چوراہا، اور پھر یہاں آ کر کے ٹیمپو پکڑتے تھے۔ لیکن ہم نے سوچا کام کرنا ہے تو کرنا ہے انشاءاللہ، اور اس وقت بہت چکر کاٹا، روم تلاشا، لیکن الحمدللہ میں قابل فخر سمجھتا ہوں دربھنگہ والوں کو کہ دربھنگہ کی سرزمین بہرحال اچھے کاموں کا استقبال کرتی ہے۔ امتحان بہت لیتی ہے یہ سرزمین، بہت دل کو پگھلاتی ہے، دل کو بہت جلاتی ہے، لیکن اس کے باوجود کام ہوتا ہے۔
मैं जब दरभंगा में आया तो एक साहब ने कहा कि ये सरजमीन इल्म का कब्रिस्तान है। एक बात ये कही। दूसरी बात कही कि यहां पर कद्र नहीं है। और तीसरी बात ये कही, क्योंकि मेरी 3 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह छप चुकी हैं, तो उन्होंने कहा माशाल्लाह कितना अच्छा तसनीफ और तालीफ का आप काम कर रहे थे, मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब के आप यहाँ चले आए, नूरानी कायदा अम्मा पर आप कुरान पढ़ा रहे हैं। ये 3 बातें कही मेरे बहुत ही मुखलिस खैरखा ने। मैंने उनसे कहा, तीनों बातों का जवाब दिया। मैंने कहा नंबर 1, आपने ये कहा कि वहाँ किताबें लिख रहे थे, इसका मतलब यह है कि थोड़ी बहुत तो अकल शूर समझ है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है तो ठीक ही फैसला किया होगा। एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही उन्होंने कि कद्र नहीं होती है। मैंने कहा जिसको कद्र की तमन्ना हो और फिर कद्र ना हो तो उसको अफसोस होगा, और जिसको कद्र की तमन्ना ही नहीं है, तुम्हारी नाकदरी से क्या फर्क पड़ता है। और यही वजह है कि जब मैंने मदरसे की बुनियाद डाली, उस वक्त हज़रत मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी साहब से तारीख पूछ करके मैंने बुनियाद डाली थी, लेकिन मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी किसी सफ़र की वजह से शरीक नहीं हो सके, और हज़रत की का हुक्म था कि प्रोग्राम कर लो। प्रोग्राम हमने कर लिया। प्रोग्राम के बाद हज़रत से फिर मुलाकात हुई तो हमने कहा हज़रत, तमाम लोगों ने सराहा है, तारीफ़ की है कि अच्छा काम है। हज़रत ने एक जुमला कहा, ई सब का देखते हो, काम करो। खुदा की कसम ये जुमला एक जुमला नहीं था। जब तक मदरसा चलाना अल्लाह ने तौफीक में रखा होगा, उस वक्त तक के लिए हज़रत मौलाना कासिम साहब की तरबियत थी। न किसी की तारीफ का असर होना चाहिए और न किसी की तौहीन का असर होना चाहिए। हज़रत मौलाना कासिम मुजफ्फरपुरी साहब ने इस पहलू से तरबियत फरमाई। तीसरी बात उन्होंने कहा कि ये इल्म का कब्रिस्तान है, बड़े बड़े आलिम आए और यहां दफन हो गए, उसका कोई चर्चा नहीं रहा। हमने कहा जी हां, ये इल्म का कब्रिस्तान है, लेकिन ये अल्लाह का अटल फैसला नहीं है। अल्लाह का ये फैसला टाला जा सकता है मेहनत करके। अल्लाह ताला के फैसले 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं तकदीर मुबरम, जो बिल्कुल अटल है, जो टल नहीं सकता है, और दूसरा तकदीर है तकदीर मुअल्लक, जो टल जाता है। इसी को हदीस में कहा अद्दुआउ यरुद्दुल बला, दुआ मुसीबतों को टाल देती है। जब मुसीबत अल्लाह का फैसला था तो दुआ से क्यों टलती है? वो सदका बलाओं को टाल देता है। क्यों टालता है? वो फैसला कि ये बला और मुसीबत आने वाली है, ये अल्लाह का, आप लोगों से भी कहना है, ये अल्लाह का फैसला मुअल्लक होता है कि अगर तुम नहीं सुधरी तो ऐसा हो जाएगा। तुम अगर सुधर गई, तुमने अपने आप को ठीक कर लिया, अल्लाह के सामने रो धो लिया, तो बड़ा बड़ा मंजर बदल जाता है। अबरहा का लश्कर, उसने ये सोचा था सारे मुसलमान पूरी दुनिया में जो है उसका सबसे बड़ा सबसे अहम मरकज काबतुल्लाह, काबा शरीफ, उसको ढाने का प्लान किया था उसने। और उस वक्त दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने आप को कमजोर पाया। दादा अब्दुल मुत्तलिब आए और आकर के सारे सरदारों को जमा किया और कहा यह काबा अल्लाह ने हमारे हवाले किया था, शायद हम इसकी हिफाजत करने के लायक नहीं है, इसलिए अल्लाह हमसे छीन रहा है। इतना सुनना था कि सारे लोग गए काबा के पास। अब काबा में हल्का बना हुआ है, यानी कड़ी बनी हुई है। काबा की कड़ी को पकड़ पकड़ के फूट फूट करके रोए कि अल्लाह हम कमजोर हैं, तेरे काबे की हम कदर नहीं कर सके, ऐ अल्लाह आप इसकी हिफाजत फरमाइए। उन्होंने कदर की, उनको एहसास हुआ अल्लाह तबारक ताला ने काबे की हिफाजत फरमाई, और आज तक लोग काबे में जा रहे हैं। आपको लगता है ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आपको बता दूं दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ। आज पूरी दुनिया में दारुल उलूम देवबंद का चर्चा है। दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, कई साल तक दारुल उलूम देवबंद में मतबख नहीं था, खाना पकाने का इंतजाम नहीं था, बावर्ची नहीं था। खाना लोगों के घरों से आता था, बच्चों का खाना लोगों के घरों से आता था। ये कद्र की है लोगों ने। उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने इतना मकाम अता फरमाया उस बस्ती को कि उस पूरी बस्ती का खर्चा इन तलबा से चलता है, तलबा की दुकानदारी से चलता है। वही दारुल उलूम देवबंद में
फिर कहिएगा कि ये पुरानी बात हो गई, 1960 की बात, 1860 की बात। लेकिन आपको बता दें कि यही दारुल उलूम देवबंद में हमारे जमाने की बात है, 2002 और 3 की बात है। 2002-3 में, ये हर 2-3 साल बाद गल्ला स्कीम के नाम से एक जलसा होता है। वहां गल्ला स्कीम का मतलब यह है, गांव देहात के सारे लोग जमा होते हैं और गांव के सरदार ये तय करते हैं हमारे गांव से कितना गेहूं दारुल उलूम देवबंद में जाएगा, ये लोग तय करते हैं। सब देहाती लोग रहते हैं, किसान लोग। मैंने 2 आदमी को बात करते हुए सुना, कसम से आंखों से आंसू निकल गए। 2 आदमी बात कर रहा था। एक आदमी कहा था देहात के दावण में, अज्जी मालूम हुआ दारुल उलूम देवबंद में गल्ला कम पड़ गया इस साल। यानी मुझे मालूम हुआ कि इस साल दारुल उलूम देवबंद में गल्ला की कमी हो गई है, ये एक आदमी ने कहा। दूसरे आदमी ने कहा आइंदा बिल्कुल कमी नहीं होने देने, ये जुमला कहा 2 देहाती ने। और उसके बाद जब गल्ला का प्रोग्राम होता है तो कहा गया कि भाई आपकी बस्ती से कितना गल्ला, तो सबने बढ़ा बढ़ा के कहा इतना गल्ला, इतना गल्ला, इतना गल्ला जाएगा। दारुल उलूम देवबंद में दोनों टाइम रोटी मिलती है और कभी आटा और गेहूं खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये लोग कुर्बानी देते हैं। मैं एक बात और कहता हूं, अब फख्र और घमंड के तौर पर नहीं कहता हूं, हकीकत के तौर पर कहता हूं। क्या मैं मेहनत नहीं कर सकता हूं? क्या उलमाए किराम मेहनत नहीं कर सकते हैं? मेहनत कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो एक काम में लगे हैं। पैसा का भी इंतजाम यही करें तो वो काम क्या करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बनने के बाद काम के लिए निकले तो लोगों ने कहा कि आप अगर काम कीजिएगा तो लोगों की दीनी जिम्मेदारी को कौन संभालेगा? उस वक्त अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा ठीक है, तो उनका लोगों ने इंतजाम किया, बैतुल माल से इंतजाम हुआ। बहरहाल जिस चीज की जहां पे कदर होती है, जितनी जल्दी कदर शुरू हो जाती है उतनी जल्दी अल्लाह तबारक ताला उसको नेमतों से नवाजता है। ये बस्ती ऐसी होनी चाहिए कि इस बस्ती में पूरे इलाके की बच्चियां यहां आकर के फायदा हासिल करके जाए इल्म का। और ये करना कब होगा? जब यहाँ के लोग कदर करेंगे। और जितने लोगों का यहाँ आना जाना होगा, इंशाअल्लाह शहर क्यों तरक्की करता है, हर तरफ से लोग वहां पहुंचते हैं। किसी बस्ती में जब ज्यादा लोगों का आना जाना होगा तो वो बस्ती भी तरक्की करेगी, उसका भी नाम रोशन होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस बस्ती को लोग जानते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह महदुत तैयबात के क़याम के बाद और भी ज्यादा लोग इसको जानने लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस्ती का भी बहुत फायदा होता है। काश बस्ती के लोग इसको ढंग से समझे। हर इलाके में थोड़ी सी नाकदरी होती है, उससे इंसान को मलूल खातिर नहीं होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो काबा के अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया। जो उनकी बस्ती है उस बस्ती में काबा के अंदर नहीं दाखिल होने दिया गया। इससे बड़ी नाकदरी और क्या हो सकती है? काबा के अंदर नमाज नहीं पढ़ने दिया उनको, नमाज पढ़ने के लिए गए तो ऊंट की ओजी डाल दी। लेकिन एक दिन लोगों ने एक्सेप्ट किया, तस्लीम किया, इसको उनके औलादों ने तस्लीम किया। इसलिए ये दीनी इदारा है, जैसा कि तमाम लोगों ने फरमाया। इंशाअल्लाह ये इदारा तरक्की करेगा। इंशाअल्लाह ये पहली बैच जो आलिमा की निकलेगी तो इस बस्ती की तारीख रकम होगी इंशाअल्लाह कि यहाँ से आलिमा बन करके निकली है। यहाँ तो आलिम भी नहीं बनते हैं, बहुत गिने चुने आलिम है यहाँ पर, इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद, और आलिमा तो कहीं नामो निशान नहीं है। और इसी वजह से दरभंगा शहर से हमको आलिमा यहाँ पर लाना पड़ता था, लेकिन गुमती पर चूंकि गाड़ी में काफ़ी ताखिर हो जाती थी, इसलिए रोज़ाना लेट होता था, इसलिए वहाँ से उनके आने का सिलसिला ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अब यहाँ पर कहीं पर आलिमा है नहीं तो पढ़ाएगी कौन आखिर? इस वजह से भी ये कायम किया जा रहा है कि चंद बच्चियाँ अगर रहेंगी तो उनके साथ आलिमा का रखना भी आसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी से एक हाफिज़ा और एक आलिमा कम से कम हमारे राब्ते में हैं कि इंशाअल्लाह ईद बाद से वो बाज़ाब्ता वक्त देंगी। और भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 3-4 आलिमा रहे और हर वक्त आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आप दुआ भी कीजिए, कोशिश भी कीजिए। इदारे की मजबूती के लिए, इदारे की तरक्की के लिए आप तमाम लोग कोशिश कीजिए। इन लोगों को भी दुआ दीजिए जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं दरभंगा शहर से। इसकी मोहब्बत है कि दरभंगा शहर से ये हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। मैं तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, अल्लाह तबारक ताला अगर देगा तो अपनी शान शान अजर देगा अल्लाह तबारक ताला। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की सही को, हम मेहनत को कबूल फरमाएँ।
انشاءاللہ یہ اصل تو بن رہی ہے مسجد آپ لوگ کی، ہم لوگ کی بن چکی ہے، ہم لوگ کی مسجد بن چکی ہے، اب آپ لوگوں کی مسجد بن رہی ہے یا نماز خانہ بن رہا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ اس ہال سے، جیسا کہ مولانا اشرف صاحب نے کہا، انشاءاللہ ایک مثالی ہال ہوگا یہ، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے ہدایت کے سوتے انشاءاللہ پھوٹیں گے، انشاءاللہ ہدایت کی روشنی انشاءاللہ یہاں پھیلے گی۔